So they have said कि P is a point which is here on the line joining the center of E and M. This is M, this is E, Earth, and the second mass, where the resultant gravitational field strength is zero. Point P is at a distance x from the center of the Earth. Explain how is it possible for gravitational field strength to be zero despite the presence of two large masses. तो हमने क्या इसके what was the reason for that? Newton's third law. Yes, gravitational field of Earth is in opposite direction to that of Moon. That's why the resultant would be equal in magnitude and opposite in direction. स्टार्ट में हम लिखना भूल गए. According to Newton's अच्छा. Then they have asked us to show that the distance is 3.5. What data do we have here? We have mass of the Earth, we have mass of the Moon, we have the distance between these two, and उसने हमें ये distance well prove करने को बोला है. 3.5 into 10 raised to the power 8. 9. That's the difference. Okay. What formula are we going to use? We know that a weight of the object is equals to gmm over r square. M से cancel out हो गया. G is proportional to gm over r square. Let's put the data. 6.67 raised to the power minus 11 times mass of the earth, which is 6 into 10 raised to the power 24, divided by the distance, which was 3.84 into 10 raised to the power 8 square. But हमें x फाइंड आउट करना है. सॉरी, which means we have to use this formula twice. One for moon and one for the earth. क्योंकि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. आई फॉरगॉट दैट. लेकिन रिलेशन वही रहेगा कि g इज प्रोपोर्शनल टू gm ओवर r स्क्वायर. तो अगर हम g ऑफ अर्थ एंड g ऑफ मून की बात करते हैं तो दोनों का g तो क्या रहेगा? कांस्टेंट, ये वाला फैक्टर. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू डील विद दिस, we're going to deal with the mass over radius. तो मून से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है, which would be 6 into 10 to the power 24 divided by r square, which is 3 point. नहीं, r हमें निकालना है. उसकी जगह पे हम x पुट कर देंगे. दिस इज फॉर अर्थ. और जब हम मून पे आएंगे, इट्स गोइंग टू बी 7.35. I shouldn't be writing here. I should write it in the right place. Do you have the file open at your end? Yes, sir. मैं प्रिंट Okay. किया हुआ है पेपर. Give me the data when I'll ask you, okay? The first one is mass of the earth, which is this. X हमें find out करना है. Is equals to mass of the moon. बताइएगा क्या है? 7.35 multiplied by 10 raised to the power 22. Divided by 3.84 into 10 raised to the power 8 minus x square. ठीक है. अब हम कर लेंगे इसको x के सॉरी
keep your calculator ready as well. I don't have mine with me right now. Okay, it's going to be 3.84 in into 10 raised to power 8 minus x का whole square over x square equals to 7.3 into 10 raised to power 22 divided by 6 into 10 raised to power 24. पहले तो इसका रेशियो का आंसर निकाल लो ना, क्या आ रहा है? 7.35 into 10 raised to power 22 divided by 6 into 10 raised to power 24. 0.01. अच्छा जी, अब ये इतना लंबा सवाल है, सिर्फ 2 मार्क्स दिए हैं मैंने। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 3.84 इंटू 10 raised to power 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3.84 इंटू 10 raised to power 8 इंटू एक्स इंटू 2, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा, सॉरी -2ab क्योंकि माइनस था, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा ओवर x नॉट स्क्वायर, सो इट शुड बी कैंसल्ड एट सम पॉइंट, को होना चाहिए कैंसल। व्हाट पॉइंट एम आई मिसिंग? इतना लंबा जाना नहीं चाहिए इसको। चलो देखते हैं। there is no shorter way, is phi is equals to minus gm over r and at point p निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। और p के लिए हम x की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं which is 3.5 into 10 to power 8. We just need to put the value. It's 6.67 into 10 to power 11 into mass of the earth ही लगेगा यहाँ पे, हाँ mass of the earth लगेगा 5.98 into 10 to power 24 over 3.5 into 10 to power 8। पहले इसका आंसर निकालो फॉर अर्थ, फिर मून के लिए हमारे पास अगेन 6.67 into 10 to power -11 मल्टीप्लाई बाय 7.35 into 10 to power 22 डिवाइडेड बाय मून का डिस्टेंस कितना था ऊपर उसने दिया हुआ 3.8 into 10 to power 8। Okay, go ahead and give me the answers of these two. Sir, for Earth, 1.114 multiplied by 10 raised to power 6 आंसर है। Okay, अल्लाह, इतना बोलते हैं ये लोग। by 10 raised to power -9. अच्छा, 3. तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 1.2 into 10 raised to power 6 joules per kilogram. I guess we did this question before or not? No, but we did a question something which was looking like this. Okay, first of all, we need to give the amplitude of it. So I have told you 10 like many times, तो हमने हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेना होता है। तो 20 से यहाँ तक का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या वैल्यू बन रही है? 5। ये आ गया 5। अच्छा, यूनिट उसने दिया। ऑलवेज कभी भी अगर उसने ये पूरा डिस्टेंस दिया है उसका हमें हाफ करना होता है।
इफ वी सी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना बन रहा है 10, तो उसका हाफ क्या होगा? 5। इन ईदर केस विल गेट द सेम आंसर। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है। लेट्स सी टाइम पीरियड इसका क्या बनना है। यहाँ से अच्छा पहले वाला रिमूव कर देते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए, लेकिन हमें ऊपर से टाइम भी देखना है। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं। ओके। सर एक मिनट जरा। यहाँ से यहाँ तक 8 बन रहा है। इस पीक से इस पीक तक जो है वो 4 to 8 4 बन जाएगा, तो टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। तो 2 पाई बाय 4 बन जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, पाई बाय 2 जो है वो 9 होता है। देखो पाई बाय 2 का आंसर क्या आ रहा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 1.57। 1.57 इंटू इंटू तो कुछ नहीं है ना, नहीं। बस 1.57 है, तो उसको राउंड ऑफ यस करके सर। 1.6 रख देंगे। अब मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा एक्स होता है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1.57। एंड एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.85। 7.85 rounded off to 7.9। Always remember we are going to use the actual values for the calculation, not the rounded off। ठीक है। अब है ओके। apart from quantities in A, describe what may be deduced from figure 1.42 about the motion of the trolley between t equals to 0 to 24 seconds। No calculations are required। अच्छा जी, सबसे पहला जो thing that we observe here, कि हमारे पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। यस सर। एंड द डैम्पिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर 12 सेकेंड। तो पहला पॉइंट क्या होगा, अप टिल 12 सेकेंड मोशन इज अनडैम्प्ड। ऑसिलेशन गेट्स डैम्पिंग आफ्टर 12 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम स्पीड हमेशा हमारे पास कहाँ पे होती है, पीक पॉइंट्स पे होती है। ठीक है। सॉरी, वही नो कि जब भी हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं ना, तो जीपी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड पे। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन हमारे पास कौन कौन सी बनेगी, 0 की बनेगी, देन 3 सेकेंड की बनेगी हमारे पास, और हमारे पास क्या बन रही है, ये पॉइंट्स हम लोगों ने निकाल लेने हैं, जहां जहां पे वो रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है। तो 0, 3, द स्पीड इज मैक्सिमम।